Hello guys, welcome back to my YouTube channel Ishu's World, and in this video I'm going to talk about the topic database. So today's my agenda is database. Okay, so please guys इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए बिना कोई फुल स्टॉप के. ओके, बिकॉज आप अगर इसको एंड तक देखेंगे तभी जाके हर एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या मतलब डिटेल्स दिया गया है वो आप समझ सकेंगे. ओके, मैंने 2 लैंग्वेज यूज़ करूँगी इसमें, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. सो ऑफकोर्स या होप आपको ये वीडियो पसंद आया एंड कुछ जानकारी आप लोग को यू कैन ग्रैब दी more and more informations from this video, and others whatever the thing is required, okay, that all the things are given in the descriptions, so please check it the description box also. There will be all the definitions, all the things are in details, and through whom I get inspired and I make this video, that also all the details you will get from the description box, so please watch it till end. एक्चुअली स्कीमा क्या है ना, स्कीमा मतलब हम लोग के जो डिज़ाइन होते हैं डेटाबेस के उसको हम लोग स्कीमा बोलते हैं. ओके, द डिज़ाइनिंग पोर्शंस ऑफ द डेटाबेस इज ओनली कॉल्ड स्कीमा. इट मीन्स इट इज़ द ओवरऑल डिस्क्रिप्शंस ऑफ द डेटाबेस. ओके, like we have I will give you example with figure, with diagram. I will show the diagram also, but before that I want to make you more clear about that. If you are giving the tables, okay, if you are giving the tables and the tables have the relationship, okay, so and that particular table we can only show what are the columns are present in this particular table. For example, I have took the 3 tables, 3 entities, that is our course, section and student. Okay, and this particular table we have kept the columns. So it will want show what all the datas are present in this particular tables. It only show the design of the database. That is only, it's only the structural view of a database. That is only the schema, and schema does not specify any relationship among the files. So I will show you the diagram so that you will be more clear about it. Okay, so let's move to diagram. This is one of the example. I have took 3 entities: course, section and student. These 3 of the entities, we can see that here only the columns are shown. So what we came to know is that this is only the design of the database. Okay, here what all the data, इसमें कौन से data इस particular table में कौन से data present है ये हमें दिख रहा है क्या? Of course नहीं दिख रहा है. और इसमें भी नहीं दिख रहा है, और इसमें भी हम लोग को दिख नहीं रहा है कि कौन से डेटा प्रेजेंट है. तो ये तीनों पर्टिकुलर मीन्स ये तीनों टेबल्स में हम लोग को ये नहीं दिख रहा है कि कौन से डेटा प्रेजेंट है, पर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमें? स्ट्रक्चर. इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसका डिज़ाइन दिख रहा है. तो स्कीमा का काम बस यही है, सिर्फ स्ट्रक्चर का काम है, डिज़ाइनिंग का काम है. तो स्कीमा इज ओनली अ स्ट्रक्चरल व्यू ऑफ अ डेटाबेस. So that all we can see in this diagram. Through this diagram it will be make more clear. Okay, so now let's talk about the as we know that schema has 3 level of architecture. First is our physical schema, logical schema. Logical schema is also called the conceptual schema. Okay, then we have our view schema. So let us talk about the step by step. First of all, we will talk about the physical schema. Actually it's also a part of design, this because it's all related to schema. So physical schema means the design of the database at a physical level is called the physical schema. And in this physical schema, what it is going to describe, it is going to describe that how the data is stored in the block of the storage. Okay, and logical schema means the design of the database at a logical level. Okay, that is called the logical schema, and all the programmers and the administrators, they all work at this level. Okay, and in this level only the data is described as a certain types of records that is get stored in the data structure, as well as in the conceptual schema, or we can say logical schema, the implementations of data structure. Now for example, I'm saying like implementations of data structure, these all things are hidden. Okay, so now let's move to our view schema. View schema means the designing of the database at the view level is called the view schema,
And in this view schema, it describes about the end user interaction with the database system. Instance: the collection of the information stored in the database at a particular movement is called the instance. Okay, it's very clear to all of you is that यहाँ पे हम लोग इन्फॉर्मेशन जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशन का उसको डेटाबेस में स्टोर करेंगे और एक पर्टिकुलर टाइम पे ओके एट पर्टिकुलर मूवमेंट पे उसको बोलते हैं इंस्टेंस. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू शो यू. जैसे कि एम्प्लॉय है, एक एम्प्लॉय इस डेट में, ठीक है, 15 कल का डेट 15 था, मंथ एंड ईयर. सो इन दिस पर्टिकुलर डेट 4 रिकॉर्ड्स आर एडेड. ओके, डेटाबेस में हम लोग ने इस पर्टिकुलर डेट में एम्प्लॉय ने 4 रिकॉर्ड्स मीन्स इन द टेबल एम्प्लॉय. ओके, इन द टेबल एम्प्लॉय on this particular date what we have record stored, four records we have stored. And for example another and in this is our table employee. अब इसमें हमारा जैसे कि आज 16 है, 16 to 2021. so इस this particular date में हमने for example हमने 10 records हमने store किए. अब हमने इसमें क्या देख रहा है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इस डेट में 4 रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किए, तो ये हम लोग का क्या हुआ, ये हम लोग का हुआ 1 इंस्टेंस. ओके, so this is the collection of the information stored in the database. In the database मतलब employee is one of the table in the database. So stored in the database at a particular moment. At a particular moment means this is our particular movement, that is our particular time. In this particular movement, this many records are stored or this many informations are stored in the database. That is only called the instance. Okay, hope it is clear to you all. तो इसमें हम ये बोलेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डाटाबेस में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, इसका मतलब ही इंस्टेंस होता है. ठीक है, तो इंस्टेंस विल बी गोज ऑन चेंजिंग बिकॉज समटाइम्स देयर कैन बी इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन. दैट्स वाई एंड एट एवरी इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस. ओके, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंस हम लोग यहाँ देख सकते हैं एक इंस्टेंस में हम लोग का 4 रिकॉर्ड्स है, दूसरे इंस्टेंस में हम लोग का 10 रिकॉर्ड्स है. तो ये क्या हो रहा है कि हर इंस्टेंस में डेटाबेस का जो स्टेट है, स्टेट ऑफ कंडीशन जो है वो क्या हो रहा है कि चेंज होते ही जा रहा है. सो दैट इज ओनली एट एवरी इंस्टेंस देयर विल बी डिफरेंट स्टेट ऑफ डेटाबेस. ओके, लेट मी शो यू मोर क्लियरली while doing means I will show you the insertion and I will show you how the insertion, deletion and updations is this kind of things are making the changes in the instance. Now I am going to show you some doing insertion, and in that very insertion I will show you how in the database how at every instance there will be changes. I mean the database state will be different at every instance. I am going to show you with one example by doing the insertion. Okay, so I am going to show you one website that we have created. So I am going to show you that website. Moving to our local host. सो ये रहा मेरा डेटाबेस एंड इसमें मैंने ऑलरेडी एक डेटाबेस मैंने क्रिएट किया हुआ है जो कि लॉयर नेम, मेरा जो डेटाबेस का नाम है लॉयर है. तो इसमें मैंने ऑलरेडी कुछ एंटिटीज़ कुछ टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. इट विल शो यू. जैसे कि ये सब मैंने एंटिटीज़ ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है. अब इसमें मैं आपको इंसर्शन करके दिखाऊंगी और उस इंसर्शन में आप लोग देखेंगे कि कैसे इस इंस्टेंस में कैसे मैं आपको डेटाबेस इंस्टेंस के बारे में और ये बताऊंगी कि कैसे एट एवरी इंस्टेंस द डेटाबेस स्टेट ऑफ डेटाबेस इज गोज ऑन चेंजिंग मीन्स इट विल बी डिफरेंट. ओके, सो लेट्स मूव टू फर्स्ट आवर लोकल होस्ट. लोकल होस्ट आई हैव ऑलरेडी दी मैंने वैम्प में ऑलरेडी मैंने एक क्रिएट किया हुआ है. The name was law. I will show you that. For example ये मेरा लॉगिन पेज है
और मैं लॉगिन फॉर्म है मेरा वेबसाइट्स का, तो मैंने इसमें क्रिएट करने को जब मैंने जैसे कि फॉर्म को फिलअप किया एज अ यूज़र, मतलब जैसे कि हमने इस फॉर्म को मैंने फिलअप किया जैसे ZX, ओके। यहाँ पे हम लोग का रिपीटेड हो रहा है पासवर्ड। उसके बाद मैंने इसको लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद ये दूसरे पेज में गया फॉर्म। सो लेट्स सी, मैंने वो लॉगिन फॉर्म को जो फिलअप किया था वो हमारा डेटाबेस में दिखा रहा है कि नहीं। जैसे कि मैंने इसमें ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ टेबल लॉगिन PO, और वो यहाँ पे इंसर्शन दिखा रहा है यहाँ पे, ओके। तो इसका मतलब क्या होता है कि एट वन इंस्टेंस, दिस इज़ आवर वन इंस्टेंस। मतलब वन इंस्टेंस मतलब हमने यहाँ पे क्या किया कि डाटा को रिकॉर्ड किए एट अ पर्टिकुलर मूवमेंट। इतना टाइम में मैंने इसमें तो अभी मैंने एक रिकॉर्ड किया है, एक डेटा रिकॉर्ड किया, या नहीं तो मैंने फॉर एग्जांपल अगर दे दूँ मैंने इतना रिकॉर्ड आज मैंने इतने सारे मतलब 3 और 4 रिकॉर्ड्स मैंने स्टोर किए। तो अब मैंने स्टोर करने के बाद उसमें क्या होगा कि स्टोर करने के बाद इतना मोमेंट में मैंने इतने कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशंस मैंने इस डेटाबेस में इस पर्टिकुलर टेबल में स्टोर किए, वो हम उसी को बोलते हैं इंस्टेंस, ओके। और हम क्या कर सकते, कभी हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, या कभी एडिटिंग करना पड़ा तो एडिटिंग करेंगे, या कॉपी मतलब एडिटिंग या अपडेट, या हम इसमें डिलीशन करेंगे, या कुछ और एडिशन मतलब इंसर्शन करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये सब करने से क्या होगा कि ये इंस्टेंस हम लोग का क्या होगा कि goes on changing due to what at every instance what is happening our database is goes on changing, मतलब हम लोग का डाटाबेस का जो स्टेट है वो डिफरेंट होते जाएगा, ओके। एक्चुअली जो वो था ना लॉगिन वाला, वो जस्ट मैंने एग्जांपल दिखाया है, आपको बस इतना समझना है क्लियर। एक्चुअली यही लाइन है कि जो भी कलेक्शंस है ना इन्फॉर्मेशन का, चाहे 4 रिकॉर्ड्स हो या 5 रिकॉर्ड्स हो, 4 और 5 और 10, सो एट वन इंस्टेंस में एक इंस्टेंस मतलब एक इंस्टेंस में मैंने एक इंस्टेंस किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आज मतलब आज हम लोग का डेट 16 है, तो 16 फरवरी को मैंने 4 रिकॉर्ड्स मैंने स्टोर किया डाटाबेस में, तो ये एक वन इंस्टेंस है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने 15 फरवरी को मैंने 10 रिकॉर्ड्स स्टोर किए, तो मेरा ये दूसरा इंस्टेंस है। तो ऐसे पर्टिकुलर इंस्टेंस क्या हो रहा है कि मतलब हम इसमें इंसर्शन, अपडेशन, डिलीशन ये सब कर सकते हैं, तो जिससे कि क्या होता है कि हम लोग के इंस्टेंस में चेंजेस आते हैं, ओके। सो हम लोग यही है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे डेटाबेस में कौन से इंफॉर्मेशन स्टोर हो रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि इंस्टेंस बोलते हैं। लेट्स वी विल मूव टू आवर डाटाबेस इंडिपेंडेंस।